चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello and welcome to Telenor Free Hits. I'm your host SN Iftikhar Nagi for today, and today is the day in the HBL PSL because it is Lahore Qalandars taking on Karachi Kings at the Qazafi Stadium, which is not far away from where we are at the Wali offices in Lahore. We'll be talking about this epic rivalry between the two cities. I'm joined by Ahmed Shehzad, who जो हमारे regular show के guest होते हैं, analyst होते हैं. He is the first ever Pakistani to score a T20I century, which also made him, I suppose, the first Pakistani to score a century across all three international formats. Ahmed, welcome to the Thank show. you, Nagi. Welcome to you as well on this seat. और मुझे नहीं पता था इस सीट पे बैठते बैठते एकदम से इस सीट पे आना पड़ No, but जाएगा. honestly, you're looking good. Thank you so much, Okay. Ahmed. And we will also be talking about the yesterday's thriller between Quetta Gladiators and Islamabad United, which Quetta Gladiators won on the penultimate ball. There was a lot of drama in that game. Let's have a look at the match summary before we move ahead. Of course, you know, Quetta Gladiators were set 158 to win. Islamabad United को restrict किया Quetta के bowlers ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद there was a lot of drama. 15 needed of the last over. Hassan Nawaz kept his calm, kept his cool, anchored किया पूरी innings को, and he was outstanding. But Ahmed, before we पूरे मैच की बातचीत करें, I want to know, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, आपने इतनी क्रिकेट देखी है, जो कल लास्ट ओवर में हुआ है, 3 ड्रॉप्ड कैचेस, 2 छक्के, कभी आपने ऐसा मैच अपनी जिंदगी में देखा है? कभी ऐसा ओवर देखा है? I have never seen it. Been playing cricket for like what, 20 years now, and that was the first time I witnessed something like this. And that was something very new and very strange for me. Couldn't believe it. It was indeed quite strange considering जिस तरह, I mean, first of all, मैं तो सबसे पहले, I'll go back to the 19th over, but उससे पहले अगर 20th over की कैचेस की बात करें, शहजाद ने फर्स्ट बॉल किया, लेंथ बॉल. ऑफ कोर्स वी नो कि कैच, अभी हम कैचेस साथ साथ देखते भी हैं कि शहजाद, वी नो ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर. लेंथ बॉल पे बॉलिंग करा रहे थे बार बार, और हसन नवाज वाज गोइंग फॉर स्वाइप्स, लेकिन पहले खुद चले गए कैच लेने, जो कि प्रोबेबली काइल मेयर्स ले सकते थे. फिर थर्ड मैन के ऊपर सलमान इरशाद ने ड्रॉप किया, फिर उसके बाद सलमान इरशाद और जो इनके कीपर थे ऑन्ड्रे गॉस, उनके दरमियान थोड़ा सा मिक्सअप हुआ, एंड इट एंडेड इन अनदर ड्रॉप कैच. सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, इस तरह की फील्डिंग का? See, while bowling, if you're bowling in a follow through, it's always tough to catch something like this. If the ball is really skied high the way it was last night, keeper is your safest bet. Yeah. I think he should have called Gauss for that catch, where the first one I'm talking about, जो शहजाद ने करने गया. I think it was his catch, keepers. क्योंकि शहजाद, all the time when I was watching him, जब वो नीचे आ रहे थे, his eyes was wobbling. He was never stable. इस पोजीशन के अंदर उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी कीपर के पास, क्योंकि ग्लव्स होते हैं, उसके लिए चीज़ें आसान होती हैं. फिर जो दूसरा कैच था जो सलमान इरशाद के पास भी गया, that was a very straightforward catch. You expect anybody to take these catches in this sort of level. PSL, अगर शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो आपका सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का. तो अगर तो सबसे बड़ा ब्रांड है, वहाँ पे ये डॉली कैचेस हैं. दूसरा सलमान इरशाद ने छोड़ा, एंड्स अप 2 रन हो गए उस पर. उसके बाद तीसरा फिर स्काई हुआ, वो थोड़ा सा मुश्किल था गॉस के लिए, बिकॉज गॉस ने भी पीछे भाग के जाना था. और फिर अगेन कॉलिंग देखने में नहीं आई. हमेशा चाहे कीपर भी हो, जो मर्जी हो, जब 2 लोग आ रहे होते हैं एक कैच के पीछे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को, क्योंकि आप टाइम नहीं होता, आपने अपने आप को भी स्टेबल करना होता है, फिर आपने ये भी देखना होता है, ओ ये भी तो आ रहा है, तो कुछ समझ नहीं लगती और मुश्किलात. इसलिए लाउड कॉलिंग जो है, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो हमें देखने को लिए नहीं मिली कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जिसकी वजह से वो आई बिलीव जितना भी गंदा खेले अपनी बैटिंग के रहे, लेकिन बॉलिंग उन्होंने आके स्टेबल बॉलिंग की. लेकिन वो आखिरी ओवर का जो ड्रामा था, काफ़ी आईब्रोज रेस की हैं उसने. और अहमद भाई, 21 वर नीडेड ऑफ द लास्ट 2 ओवर्स. काफ़ी एक डिबेट है. जुनेद खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर, ऑफ कोर्स योर फॉर्मर टीममेट इन द पाकिस्तान टीम, उन्होंने भी ये बात ट्वीट की कि प्रॉबली
नसीम शाह को वो होल्ड कर सकते थे टिल द लास्ट ओवर एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर को नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक अगर दूसरे एंड पे देखें ऑफ दिस डिबेट तो वो नसीम का एक टाइट ओवर ही था जिसमें सिर्फ 6 रन गए और आखिरी 15 रन बच गए, इंक्लूडिंग मोहम्मद वसीम की विकेट भी उसके अंदर आ गई। सो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट कि क्या नसीम शाह को 19th ओवर देना बनता था? I'm a fan of having 6 bowlers in a team, 5 specialists and 1 batsman who can bowl a bit. तब आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना नहीं पड़ता है। आपको ऐसी सिचुएशंस उन्हीं कप्तानों के या टीमों में देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे एक बॉलर शॉट खेला जा रहा हो। आप देखें पेशावर ज़ल्मी ने उस दिन बच गया क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनके 6वें बॉलर को, क्योंकि उनके पास एक 5वें बॉलर को, एक पार्ट टाइम बॉलर था। जब तक वो पार्ट टाइम बॉलर आया इस्लामाबाद के सारे प्लेयर्स जो है लगे गए हुए थे। उससे पहले एक मैच था जब हुसैन तलत को आखिरी ओवर करवाना पड़ गया बाबर को, वहाँ पे जो है वो फंस गए। 9 स्कोर जो मैच का कॉन्टेस्ट चल रहा था उसमें बहुत होता है, लेकिन उनके पास बॉलर कोई नहीं था क्योंकि एक बॉलर शॉट खेलते हैं। सेम इज हैपनिंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। नॉर्मली आई थिंक सेफेस्ट बेट ये होती है कि सेकंड लास्ट ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवा दिया जाए। आई थिंक दैट वाज अ राइट डिसीजन बाय सलमान अली आगा, क्योंकि अगर वो शहजाद उससे पहले वाला ओवर कर देता तो अगर उसको तभी 2-3 छक्के पड़ जाते तो मैं नसीम ने क्या बचाना था। तो नसीम ही तो गेम के अंदर वापस लेके आया था सेकंड लास्ट ओवर करके। हाँ, मैं इस हक में जरूर हूँ कि आखिरी ओवर भी शहजाद का नहीं होना चाहिए था। इट हैज टू बी अ रेगुलर बॉलर। वो अब कप्तान की मर्जी है, तो होता ही यही है। कप्तान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि यार मैं पहले ही विकेट लेके मैच खत्म करना चाह रहा था क्योंकि मैं एंड तक लाने ही नहीं चाह रहा था। जो उनके मेन बैटर्स थे, मेरी कोशिश थी उनको मेरे मेन बॉलर बॉलिंग करे, लेकिन अगली टीम भी प्लानिंग कर रही होती है। आखिरकार आपको करवाना पड़ ही गया, आखिरकार आप हार गए। आप जरा नॉर्मली उठा के देखिएगा क्रिकेट की हिस्ट्री, कितना मैच ऐसे हुए हैं जब एक बॉलर शॉट खेलते हैं उसकी वजह से मैच हारे हैं, और कितने मैच ऐसे हुए हैं जीते हैं। आपको हारने की तादाद बहुत ज्यादा नजर आएगी जहां जीतने की तादाद आपको बहुत मिनिमम नजर आएगी। और 158 जब आप डिफेंड कर रहे हो तो यू नीड टू टेक विकेट्स, क्योंकि वो अक्रॉस 20 ओवर्स आप वो नहीं डिफेंड कर सकते जिस तरह आपने बात की। अच्छा अहमद भाई, cricket is a very funny game. Numbers, of course, it relies a lot on numbers, but numbers actually don't do justice to the drama जो हुआ होता है। जिस तरह अभी हमने मैच समरी भी देखी, बट इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट जो कल एक पंचिंग कॉन्टेस्ट था सेकंड इनिंग्स में स्पेशली। कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टार्टेड ऑफ गुड, क्वेटा ने रिकवरी स्टेज की, फिर देयर वाज अ रन आउट, उसके बाद देयर वाज एन एपिक कैच फ्रॉम जेसन होल्डर, एंड देन अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स हसन नवाज की बैटिंग के ऊपर तो उन्होंने वो चेस कर दिया। सो I would actually want you, because we have a batsman with us, and to take privilege of that luxury, मैं ज़रा वो रन आउट आपको दिखाना चाहता हूँ जो हसन नवाज और रायली रूसो का हुआ, और फिर उसके बाद मैंने आपके फीडबैक लेना है। There it is, हसन नवाज ने शॉट खेला towards the fine leg and he was not watching the ball. रायली रूसो कॉल करके भाग गए, and though throw was quite far, but Nawaz collected it really well and he was able to dismantle the stumps. So it was a direct hit. So what do you make of this run out? Whether क्या रायले रूसो की गलती थी, हसन नवाज की गलती थी? What are your thoughts? ये पर्टिकुलर रन आउट है, इसमें 2 थॉट्स हैं। एक ये है कि उसने भी शॉट मारा ही था, और जब आप पुल शॉट मारते हैं ना, एक तो होता है यूं ग्लांस किया, वो जब आप पुल शॉट मारते हैं तो आपकी बॉडी भी साथ रोल होती है, और आपने देखा होगा हसन नवाज की पूरी बॉडी रोल हुई, ऑटोमेटिकली वो बॉल की तरफ देख रहा था, और वो बॉल तेजी से शॉर्ट फाइन की तरफ गया, और वहां से रोसो को स्ट्राइक चाहिए था। रोसो बहुत ज्यादा आगे आ गया। अगर आप दूसरी किताबों में कहेंगे कि यार वो तो रोसो का कॉल था, हाँ ठीक है रोसो का कॉल था, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि अगले इंसान ने वहां नहीं पहुंचना। उसने रोल किया, सीधा बॉल जा रहा था, उसने फौरन रिएक्ट नहीं किया, और रोसो तब तक बहुत आगे था। अगर आप बुक वाइज जाएंगे तो इट वाज अ रोसो कॉल और हसन नवाज ने गलत किया, लेकिन अगर आप रियलिटी जो आपने मुझे दिखाई है या कल भी हमने देखी है, तो पुल शॉट मारते हुए आपकी बॉडी रोल होती है, फिर आपकी आंख बॉल की तरफ गई और बॉल सीधा फील्डर के हाथ में था। बाय द टाइम वो उसको देखते उसने हाथ तो खड़ा कर दिया था, क्योंकि क्राउड इतना होता है, आवाजें नहीं आती यस नो की, तो उसने हाथ खड़ा कर दिया था। उसने देखा रोसो बहुत आगे आ गए थे। ऐसा नॉर्मली तब होता है जब इंसान को स्ट्राइक चाहिए होती है। रोसो को जब मुझे स्ट्राइक चाहिए होती थी ना, तो मैं बस इस ताड़ में होता था, बॉल कहीं भी चली जाए, मैंने पहुंचना, मेरी कॉल है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो पोजीशन इस तरह की थी, हसन नवाज इस पोजीशन में था कि वो उस तरह रिस्पॉन्ड कर नहीं सका। राइटली उसने नो किया, क्योंकि हसन नवाज भी भागता तो वो रन आउट हो जाता। Still, it was quite an incredible innings from Hassan Nawaz. Of course, you get a lot under pressure जब आप अपने किसी सीनियर प्लेयर को रन आउट इस तरह करवा दें, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, विल टॉक अ लॉट ऑन हसन नवाज इनिंग। बट अहमद, आपने बात की कि जब
आपको भी स्ट्राइक चाहिए होती थी, सो यू वांटेड कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं। ऑफ कोर्स आपके अपने डोमेस्टिक इंटरनेशनल कैरियर के अंदर आप बहुत ज़्यादा रन आउट हुए होंगे। कोई ऐसा इंस्टेंस या कोई ऐसा रन आउट जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पार्टनर पे चढ़ा हो, या कभी ऐसा आपको रियलाइज़ हुआ हो यार ये मेरी वजह से रन आउट हो गया? बहुत दफ़ा ऐसा चीज़ें हुए। रिसेंटली मैं बता देता हूँ हाँ आपको, जब वर्ल्ड 11 आया था, जी जी जी, 2017। मैंने 89 पे खेल रहा था। राइट। मेरा अभी कमबैक था, आपको ओके पता है ओके। एक एक रन मैटर करता है। या तो मैं चाह रहा था कि स्ट्राइक मुझे मिले, और बाबर आजम मेरे साथ गालिबन खेल रहे थे। सही। तो बाबर आजम खेल रहे थे तो बॉल उन्होंने फ्लिक करने गए, कीपर से दूर गया, डाइव मारी कीपर ने और हाथ से लग के थोड़ा दूर चला गया। मैं भाग गया था, बाबर आजम मूड में नहीं थे और एंड एंड वाले ओवर्स चल रहे थे। तो वहां से उन्होंने मुझे नो की, जो कि मैं वापस आया और मैं रन आउट हो गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनकी गलती नहीं थी, या हमने ये पहले चीज़ डिसाइड की नहीं हुई थी। राइट। अगर आपने इस तरह का रन लेना होता है ना, तो पहले आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं पार्टनर से कि यार जहाँ भी जाएगा हल्का सा भी स्निफ मिलेगा तो हमने रन लेना है। आई वॉज प्लेइंग सेट, आई वॉन्टेड अ स्ट्राइक, तो आई थॉट कि वो थोड़ा प्रोएक्टिव दिखाएंगे, अपने आप को शो या करेंगे, लेकिन वो भी किसी मूड में नहीं थे, मैं ज़्यादा मूड में था, तो मैं इसे वापस पहुंचा नहीं गया। सो ये रिसेंट है, ऐसे तो बहुत दफ़ा यार गलतियां तो होती रहती हैं राइट। इसमें। एंड अहमद, आपने बहुत यंग एज में अपना डेब्यू कर लिया था। अभी भी यू आर जस्ट व्हाट 34 33 यंगस्टर हैं इस टाइम पे, तो बैट्समैन मैच्योर हो रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, जाहिर बात है आपने अपने सीनियर्स को भी रन आउट कराया होगा, टू पुट यू इन हसन नवाज़िस शूज एंड टू अंडरस्टैंड कि कल उन्होंने कितना एक ब्रिलियंट नॉक खेला है। जब आपका सीनियर रन आउट होके चला जाता है और आपको पता होता है इट्स अ क्रूशल मैच, आपने जितवाना है, एंड नाउ देयर इज ऑलरेडी अ स्ट्राइक ऑन यू कि आपने एक रन आउट कराया, एक आपने मसला क्रिएट किया है फॉर द टीम, उस माइंडसेट से निकलना एंड टू कंसंट्रेट ऑन एवरी बॉल, वो कितना डिफिकल्ट होता है? आई थिंक उन प्लेयर्स के लिए डिफिकल्ट होता है जिनको मैच की बहुत अवेयरनेस हो, जिनको विकेट की बहुत अवेयरनेस हो, सिचुएशन की बहुत अवेयरनेस हो। मुझे नहीं लग रहा कि हसन नवाज को इतना कोई फ़र्क पड़ा होगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं होगा शायद उस टाइम पे कि ये क्या हुआ है क्या नहीं राइट। हुआ। उन प्लेयर्स को जिनको पता हो कि हाँ यार ये मेरी वजह से, उनको बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत डिटर्मिनेशन और मेंटल टफनेस चाहिए होती है ऐसी सिचुएशन से निकल के मैच जितवाना, जो उन्होंने किया। आई थिंक दैट वाज अ लवली इनिंग बाय हिम। इट्स नॉट हिज नंबर, आके 6वें नंबर पे उनको मौके दिए जा रहे हैं, और उसमें उसने T20 के अंदर ऐसा ही होता है, आप हर तीसरे मैच में परफॉर्म करना चाहते हैं, और उन्होंने पहले भी एक अच्छी इनिंग खेली है क्वेटा के लिए, आज फिर उन्होंने कल जो है ख़त्म किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना पता था, और ना ही इतनी उनकी गलती थी। तो बिल्कुल उसके बाद वो एक जो पैनिक होता है ना, वो आपकी बैटिंग में नज़र आती है। हसन नवाज की बैटिंग में वो नज़र नहीं आई। आई थिंक बड़े कामली उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, और अपनी जो जॉब थी वो ये थी कि देखिए ठीक है वो आउट हो गया, लेकिन अब मेरी जॉब है, मैंने इसको आगे लेके चलना है। वो अपनी बैटिंग का प्लान करते हुए नज़र आए, जिसको उन्होंने बड़ा फिनोमिनली एंड में चांसेस मिले, बट उन्होंने तो नहीं कहा था कि कैचेस ना पकड़ो। इवेंचुअली उनको मैन ऑफ द मैच मिला। एक यंगस्टर को मैन ऑफ द मैच मिलता है, खुशी भी होती है, और उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर हसन नवाज़िस फैमिली, जिस तरह से कल उन्होंने 50 किया, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर अपनी डेब्यू सीरीज़ में 100 भी वो करके आए। और हम अक्सर अक्सर ये हम बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान के पास स्ट्राइक हिटर्स नहीं है, पावर हिटर्स नहीं है, ऑफ कोर्स बट जो कल हमने देखा एक मिडलिंग स्कोर हमेशा ट्रिकी थोड़ा सा होता है, 150 160 140 ऐसे स्कोर्स, समटाइम्स यू डोंट रियली नो कि आपने किस गियर में जाना है, क्या आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्या आपने पावर हिटिंग करनी है। बट अहमद भाई, कल हसन वाज क्वाइट क्लियर, ही न्यू कि मुझे कब शॉट मारना है, कब मुझे स्ट्राइक रोटेट करनी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं, कुछ भी नहीं। हसन ने शायद गलतियों से सीखा होगा। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह खेल रही है, जिस तरह उन्होंने शफलिंग की है, जिस तरह 7-8 प्लेयर बाहर बिठा दिए, फिर ले आए, अब वो खुद फंस गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। अहमद भाई, 15 चेंजेस इन द लास्ट 3 ठीक है, अब मैचेस। वो फंस गए बहुत बुरी तरीके से। मुल्क के चारों कोनों से उनकी जो स्ट्रेटजी है उस पर आवाज़ उठाई जा रही है, और अब ये हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को समझ ही नहीं लगनी। जहाँ से हम देख रहे हैं उनको नहीं अब समझ लगनी कि अब किसको कहाँ खिलाया जाए कॉम्बिनेशन में। अब वो स्ट्रगल करेंगे आगे भी। जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन एक होता है ना परफेक्शन, जिस तरह वो जा रहे थे। सो देव गॉट नोबडी बट टू देमसेल्फ टू ब्लेम। उसके बाद जिस तरह मिडल के अंदर विकेटें गिर रही थी, जो शॉट्स मार के आउट हो रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर, आई थिंक हसन नवाज ने वो सारी चीज़ें देखी हुई थी। उस टाइम पे वो बड़ा स्टेडीली जो है वो लेके गए, शिप को लंबा लेके गए, डीप लेके गए। और जैसे इंसान जब डीप जाता है ना, उसको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एक वो होप दिखाई देने लगती है कि अच्छा अब आई कैन डू इट। सो जब 17वें एक ओवर में वो शायद गए होंगे, तो उनको वो होप दिखाई गई होगी कि तो अब तो सारी चीज़ें मेरे पे हैं। तो वो होता है ना, जब आप पे सारी नज़रें आप पे आ जाती हैं और आपको भी पता लग जाता है यू गॉट नो अदर चॉइस टू हाइड,
ठीक है, आप कहीं नहीं छुप सकते, इधर यू हैव टू डू इट, इधर यू लूजिंग। तो उसने वो चैलेंज को लिया और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनकी हेल्प की, लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आप देखेंगे तो कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पोजीशन में आएगा जहाँ पे वो अभी है। अब अगला मैच उनका कल है पिंडी में गालिबन। नहीं, उनका अगला मैच है अब वेडनेसडे को, कल मुल्तान सुल्तान्स आर होस्टिंग पेशावर ज़ल्मी। तो वेडनेसडे तक होपफुली यू नो दे सिट टुगेदर, और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें अब राइट कॉम्बिनेशन बनाने की। अगर मैं भी उनकी जगह भी होता तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती, कि क्योंकि काइल मेयर्स भी आए हैं, कुछ प्लेयर्स गॉस को नीचे लेके गए हैं, फिर होल्डर उनका परफॉर्मर है, फिर मनरो भी आए हैं। मनरो फिर आके जिस तरह वो रस्टी लग रहे थे, उनकी फॉर्म ऐसा लगता है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक होता है आप आउट हो जाते हैं, एक होता है बड़ी रस्टी लग रहे होते हैं, तो वो रस्टी लगे तो अब उनको समझ नहीं आएगी, कप्तान भी इंजर्ड हो गया है, नया कप्तान आया है, ओपन कौन करेगा, आजम खान बाहर है, होल्डर को कहाँ फिट करेंगे, मनरो कैसे आएगा, गौस को कहाँ खिलाएंगे, ये सारी, सलमान अली आगा को कहाँ एडजस्ट करना है, वो पाकिस्तान का कप्तान है, हैदर अली को 8वें में भेजना है कि क्या करें। तो इस तरह की सिचुएशन में पड़ गए। देयर आर फ्यू हेडेक्स जो हमेशा अच्छी होती हैं, बट दीज सॉर्ट ऑफ हेडेक्स आर वेरी बैड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टीम। Well, as Ahmed mentioned that Islamabad United ने शायद इतने ज़्यादा चेंजेस करके अपने रिदम को खुद ब्रेक कर दिया है। They were at the top of the table before yesterday's match. Let's have a look at the points table, जो क्योंकि कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने after their epic win over Islamabad United, Islamabad United को टॉप से टॉपल कर दिया है। So here is the updated points table. क्वेटा ग्लैडिएटर्स have had a terrific Lahore leg. 4 मैचेस थे जिनमें से एक उनका नो रिजल्ट में एंड हुआ बिकॉज ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, बाकी 3 मैचेस उन्होंने जीते, सो 7 पॉइंट्स उन्होंने लिए। नाउ दे सिट एट 11 पॉइंट्स फॉलोड बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड हु आर ऑन 10। देयर इज ओनली 1 पॉइंट सेपरेटिंग लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, और फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी हु आर फाइटिंग वेरी हार्ड टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन, एंड मुल्तान सुल्तान्स राइट एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल जहाँ पे वो थ्रू आउट रहे हैं इस टूर्नामेंट, and they are out of the race for playoffs. So let's talk about today's game. It's a big one, Lahore Qalandars versus Karachi Kings, and it's gonna be an epic contest. We are expecting houseful in Qazafi because आज यहाँ पे लाहौर में मौसम बहुत अच्छा है. It has been cold breeze throughout the day. बादल आए हुए हैं. अहमद, इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग वन। ये वो मैच है कि जब जैसे PSL का स्केड्यूल अनाउंस होता है तो साथ ही कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि यार इस मैच के टिकट्स चाहिए, इस मैच के टिकट्स चाहिए। एज अ प्लेयर, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच अ गेम जब आपको पता हो कि पूरा पाकिस्तान विल बी स्टैंड स्टिल? यस, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ डोमेस्टिक गेम, इट इज अ लीग गेम, बट इट इज गोइंग टू बी अ बिग वन। It's always an opportunity, games like this, to be able to make your name. You play for glories. You know, in certain age when I started playing cricket, the aim was to get settled wherever I was playing, cement your place. But as soon as, you know, wherever I was playing, I knew that my place is secure. Then I always wanted to do something where my name goes big, whether it was in under-19s, whether in Pakistan A, and then for Pakistan as well. तो एक टाइम आता है, you always want कि हाँ यार इस तरह के बड़े मैच के अंदर जिसमें कोई बड़ा बुरा नहीं, लेकिन हमारी अपनी राइवलरी है ना, लाहौर कराची, क्वेटा कराची की राइवलरी होती थी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू वेल बड़ी गेम्स में, सेमीफाइनल्स में। और अगर आप मेरा PSL में रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरे नॉकआउट्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। तो यही होता था कि सोचा यही होता था कि यार आज मौका है, आज हीरो बनने का टाइम है। तो आप जब इस तरह के आपके सारे मैच अगर ऊपर नीचे भी गए हो ना, लेकिन आप इन बड़े मैचेस में आप हीरो बन के सामने आते हैं ना, तो सारा कुछ धुल जाता है। सो आई ऑलवेज वांटेड एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वेट फॉर इट। आप विराट कोहली की बात करते हैं, वो क्या करता है, ड्राई चल रहा होता है, जैसी पाकिस्तान आती है मैच हो जाता है, सारा पिछला 1.5 साल लोग भूल जाते हैं और पाकिस्तान ये किंग है। इसलिए बड़े मैच हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है और टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, आपको कैप्टन की उस तरह सपोर्ट नहीं है, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर हाथ नहीं रखा हुआ है, फिर आप और दलदल में चले जाते हो। फिर जब भी बड़ा मैच आता है, जहाँ पे आपको लगता है बहुत आईबॉल्स होंगे आपके ऊपर, वहाँ पे आप चोक करते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स। मैं हमेशा बात करता हूँ, एक प्लेयर की सक्सेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये जो दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, उनकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट भी होती है जो वो एक टॉप लेवल का प्लेयर प्रोड्यूस करती है। सो होपफुली बड़ा मैच है, बड़े प्लेयर्स जिन पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, प्लेयर्स लाइक शाहीन अफरीदी, प्लेयर्स लाइक हारिस रऊफ, प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर वहाँ पे होगा, साइफर्ट। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनने लगा है, रऊफ शाहीन वर्सेस डेविड वार्नर साइफर्ट। तो
तो अगर James तो wins. नहीं शुरू में हाँ 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आखिरी 4 ओवर और पहले 6 ओवर। अगर वार्नर और साइफर्ट पहले 6 ओवर खेल जाते हैं तो पहले 6 ओवरों में गेम साइड पे कर देंगे। लेकिन अगर शाहीन जिस तरह हमेशा से वो पहले ओवर के अंदर आउट करते हैं, 1-2 विकेटें ऊपर से लेने में कामयाब हुए, तो विंस और न्याजी स्ट्रगल करेंगे उस तरह का टोटल देखने में जो हमने देखा है। वो तो खुशदिल एंड में जबरदस्त इनिंग खेल गया और 208 तक स्कोर ले गया, नहीं तो उस तरह की फ्लुएंसी हमें मैच में नजर नहीं आई जो पिछला मैच कराची का हुआ है। तो अगर तो ये शाहीन और जो है ना वो आउट करते हैं तो जबरदस्त। और फिर आप देखें ना, मुझे हमेशा से अभी ये जब देख रहा हूँ तो लग रहा है कि दोनों टीमें अच्छी हैं, अच्छा खेल रही हैं, लेकिन कराची की बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रही है। यहाँ लाहौर की दोनों चीजें एस्पेक्ट जो है वो कवर है। एक तो होम क्राउड, ठीक है, इसका तो उनको एडवांटेज मिलेगा। फिर आप देखिए उनके प्लेयर्स इन्फॉर्म कितने हैं बैटर। फखर जमान हमें सबको पता है कैन टेक द गेम अवे 6 ओवरों के अंदर ही इज इन फॉर्म। अब्दुल्ला शफीक स्टार्टेड प्लेइंग वेल, दे बीन कंसिस्टेंट विद हिम, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, अब ही स्टार्टेड टू फ्लो, नाइस लग रहा है, एक बल्ले पे आ रहा है। दूसरा नईम, जिसको हम कह रहे थे कि यार ये किसी और को ही चांस दे दो, इतने चांसेस किसको, तो प्लेटफॉर्म मिलता रहा प्लेटफॉर्म उसने शो किया कि यार 30 बॉलों में 50, एक अच्छी फॉर्म के अंदर। फिर आप नीचे देखे सिकंदर, सैम बिलिंग्स, मिचेल, ये सारे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है और एक बड़ी हैवी साइड इस टाइम पे लग रही है सिचुएशन के अंदर लाहौर कलंदर की। तो मुझे लगता है लाहौर कलंदर का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर रहेगा, लेकिन यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम कराची, दे हैव अ वेरी बैलेंस साइड टू। वेल अगर हम टूर्नामेंट हिस्ट्री की देखें, बात करें तो उसके अंदर कराची किंग्स ने लाहौर को डोमिनेट किया। आउट ऑफ द 20 गेम्स बिटवीन दीज टू टीम्स कराची ने 13 मैचेस जीते हैं। लेकिन रिसेंटली लाहौर हैज स्टार्टेड टू पिक अप मोमेंटम। अभी रिसेंटली व्हेन लाहौर ट्रेवल टू कराची टू प्ले कराची किंग्स, वहाँ पे उन्होंने 65 रन से कराची किंग्स को हराया आफ्टर सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम फखर जमान, डैरल मिचेल, शाहीन अफरीदी ने बड़ी कमाल बॉलिंग की, साथ रिशाद हुसैन ने। अहमद, हम सिकंदर रज़ा की बात कर रहे थे। सिकंदर रज़ा पिछले 2-3 साल के अंदर अगर देखा जाए, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू, उन्होंने बड़ा कमाल एक सॉर्ट ऑफ से इवॉल्व किया है विद द बैट विद द बॉल। अभी तकरीबन वो 55 की एवरेज से PSL में स्कोर कर रहे हैं, उनका कोई स्ट्राइक रेट अराउंड 165 है। अगर लाहौर मैचेस बाज हार भी रहा था, उन्होंने इस तरह एंड पे स्कोर किया कि कम से कम नेट रन रेट के अंदर इतना डिफरेंस नहीं आया। What do you make of the सिकंदर रज़ा's transformation? देखिए बड़ा पैशनेट है वो क्रिकेट के बारे में। जब हम जिम्बाब्वे भी खेलने गए थे, इनके वालिद साहब से मुलाकात हुई, इनके घर भी जाते थे, तो उन्होंने सारा इसका बताया बचपन से किस तरह इसको क्रिकेट का कितना शौक था, हमेशा से क्रिकेट खेलता रहा। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज ब्लोक्स के जो हर टाइम क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहता है। और जब आप क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं ना, सो ऑब्वियसली आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 2, 2.5, 3 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोअर ऑर्डर का प्लेयर बन जाएगा और छिक्के मारेगा और बॉलिंग करने लग जाएगा। लेकिन उसको जब पता लगा, उसने देखा कि यार अगर मैंने लीग्स वगैरह में फिट इन होना है, जिम्बाब्वे की तो इतनी क्रिकेट होती नहीं है और टॉप ऑर्डर पूरी दुनिया के पास बल्लेबाज मौजूद हैं, और ज़्यादातर जो टीम्स होती हैं लोकल, वो कोशिश करती हैं कि बैट्समैन ऊपर टॉप ऑर्डर पे अपने खिलाएं, तो मैं किस तरह टीम्स में या लीग्स में घुस सकता हूँ। हाँ, वो डिमांड उसको पता थी कि बॉलिंग भी करता हो, बैटिंग भी, और बैटिंग भी नीचे करता हो। तो उसने अपनी गेम डेवलप की। उसके बाद वो बॉलिंग, ना सिर्फ उसने बॉलिंग स्टार्ट की, उसने मिस्ट्री टाइप बॉलिंग की जिसमें वो 2-3 ओवर फेंक देता है टीम के लिए, फिर बैटिंग आपके सामने ही वो कर रहा है। आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। इज़ द गाय, इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट सिर्फ उनका है। उनको खुद को जाता है कि वो ये चीज़ ओवरनाइट नहीं हुई होगी, उनको बहुत काम करना पड़ेगा होगा इस चीज़ के लिए, अपनी जो बेसिक्स हैं उसको चेंज करना पड़ा होगा। बिकॉज टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज की बेसिक्स कुछ और होती है, लोअर ऑर्डर की कुछ और होती हैं, आते साथ ही आपसे छिक्का रिक्वायर्ड होता है। तो आप देखें आजकल उसका स्ट्राइक रेट देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसके छिक्के देखें। लाहौर कलंदर की तरफ से सिर्फ नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं वो वैल्यू ऐड करते हैं उस टीम के लिए विद द बैट विद द बॉल इन द फील्ड। ठीक है, लाहौर कलंदर के लिए तो वो करते आ ही रहे हैं। आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर और क्रेडिट जाता है उसको, जिस तरह उसने ट्रांसफॉर्म किया है अपनी गेम को, बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैटर। अब वो बॉलिंग भी करता है और लोअर ऑर्डर छिक्के भी मारता है। बड़ा वैल्यूबल प्लेयर है लाहौर के लिए। और अहमद भाई, लाहौर की अगर बात करें, मेरे ख्याल से उनको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, या कहना चाहिए कि एवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस फॉर देम। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में शायद शाहीन अफरीदी की जब वो नेशनल टीम में खेलते हैं उस तरह से हमें परफॉर्मेंसेस, उस तरह से रिदम नज़र नहीं आता। लेकिन इस सीज़न के अंदर शाहीन हैज़ बीन रियली गुड फॉर लाहौर कलंदर। सो वो कितना बड़ा एडवांटेज है टू लाहौर। नॉट द बेस्ट, लाइक जो स्टैंडर्ड चल रहे थे, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम, बट बेटर देन व्हाट ही वाज डूइंग।
ठीक है, और हमने देखा है कि Marked जब भी improvement. हाँ जब जब PSL आती है तो शाहीन जो है डिफरेंट बॉलिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस दफ़ा भी हमने देखा है। मैं फिर बोलना चाहूँगा कि अपनी बेस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं ऊपर से, और जिसकी वजह से वो कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर, स्पेशली हमारे प्लेयर्स के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग स्टीव वॉ जैसे होते थे कि जो परफॉर्मेंस खुद नहीं करते थे, लेकिन उनका लेवल जो है वो जो एटीट्यूड है वो एक जैसे ही रहता था ग्राउंड के अंदर। लेकिन वो कब कि जो लोग परफॉर्मेंस कर दें तब भी वैसे ही रहे, जो ना करें तब भी वैसे ही रहे, तो वो ऐसा करते थे। वो सेंचुरी भी करते थे तब भी वैसे रहते थे। तो हमारे लोग ऐसा नहीं करते, हमारे लोग 5 आउट करते हैं, सेंचुरी करते हैं, बदल जाते हैं, और फिर जैसे ही फेलियर्स आते हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे चले जाते हैं। तो आई थिंक वो लेवल वो अपने सीखा था स्टीव वॉ की तरह रहना, उसने बहुत काम किया होगा। यहाँ पे हमारे प्लेयरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजवान देख लें कि बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस पे उनकी उंगलियां उठती रही, टीम से बाहर थे, टीम में उनकी कैप्टनसी अंदर ऐसी थी कि वो बिल्कुल बॉटम पे ले गए। इस तरह बाबर के साथ भी होता है। लेकिन शाहीन की अच्छी चीज़ ये है कि एक तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से अंदर टीम को अच्छा लीड कर रहे हैं, और अच्छे इंपॉर्टेंट टाइम पे जो है ना वो डिसीजंस ले रहे हैं, जिससे उनकी टीम को फ़ायदा हो रहा है। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जिस तरह साइफर्ट की हमने बात की, डेविड वार्नर की बात की, 6 ओवर ये खेलते हैं, तो मुझे तो कोई दो राय नहीं है, जिस तरह का भी पिच हो, इनको एक ही वे आता है जो मॉडर्न डे वे है, वो भाई वॉच द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल। इन्होंने वही करना है। अगर वो 6 ओवर खेल गए तो लाहौर कलंदर छुपता फिरेगा। अगर शाहीन के 2 स्नेक बन गए टाइम पे, तो फिर जो है ना कराची किंग वुड बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और जिस तरह हमने शाहीन की बात की, ऑफ कोर्स कराची के पास भी एक ऐसे पाकिस्तान के बॉलर हैं हु हैज़ पिक्ड अप फॉर्म। नेशनल T20 के अंदर ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर, नाउ यहाँ पे कराची किंग्स के लिए लीडिंग विकेट टेकर हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हसन अली। Okay. आई मीन सम कमबैक फॉर हिम, नो? देखिए, बिफोर ड्रॉपिंग हसन अली फ्रॉम नेशनल साइड, ही हैड चांसेस बट ही गॉट इंजर्ड। उसको बहुत पुश करने की कोशिश की गई, बिकॉज फ्रेंड्स होते हैं टीम में, हम सब चाहते हैं खेलें, एक दूसरे को सपोर्ट मिली, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। फिर ज़्यादा बात वहाँ बढ़ गई जहाँ उन्होंने कैच छोड़ दिया। ठीक है, वो तो लोगों के दिलों में वो 2021 सेमीफाइनल। तो मैं आज भी ये बोलता हूँ कि देखिए, आप बॉलिंग पे ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन ये कैचेस छूटना क्रूशल टाइम पे भी ये हो जाता है। तो लोगों को भी चाहिए कि उसको दरगुजर करें। अब उसको देखें कि वो किस फॉर्म के अंदर अभी है। आई थिंक इज बॉलिंग रियली वेल। काउंटी से लग रहा है कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, फिट लग रहे हैं, इंजरी से निकल के आए हैं, लीन लग रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी जगह हिट कर रहे हैं। द ओनली एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव हिम के स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम इंटरव्यूज, बिकॉज कहीं ना कहीं कंटेंट देने के चक्करों में आप इस तरह की बात कह जाते हैं कि जो कि लोगों को, जो आपके लिए परसेप्शन लोग ठीक कर रहे होते हैं, आपकी बात और एटीट्यूड सुन के वो दोबारा कहते हैं नहीं बदलना। तो मेरा एक बड़े भाई की तरह उसको मशवरा ये होगा, कीप ऑन बॉलिंग, नॉट ओनली हेयर, अगर इसको चांस मिलता है इंटरनेशनल साइड में भी, जस्ट कीप आराम से, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं पुट योर फिंगर ऑन द लिप्स, ये करके साल 1.5 साल खेले। उसके बाद ये चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम है। बोलने के देखो ना, अब हम नहीं खेल रहे, कितना बोल रहे हैं, कभी डाटा बहुत है, कभी कुछ, तो अभी खेल ले, क्योंकि खेलना चाहता है वो। अभी थोड़ा सा खेल ले, अच्छी फॉर्म है, हर मैच को जो है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। अब ये बड़े मैचेस आने लगे हैं, यहाँ पे उनकी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि उनका नाम पाकिस्तान टीम में आ गया है, ही इज जस्ट लुकिंग गुड। 7-8 मेरे, इफ यू आस्क मी, 7-8 विकेट लेना क्राइटेरिया नहीं है टीम पाकिस्तान टीम में आने का। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान कप में भी अच्छी बॉलिंग की है, अभी वो यहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर अपनी टीम को मैचेस जितवाते हैं, फाइनल तक लेके जाते हैं, और नॉकआउट्स में और अभी से क्रूशल मैचेस के अंदर आउट करते हैं, तो ऑब्वियसली अपना केस और स्ट्रॉन्ग करेंगे वो। वेल, सोशल मीडिया कैन बी अ डबल एज सॉर्ड, एंड जिस तरह मेरे ख्याल से अहमद आपसे ज़्यादा बेहतर तो इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। वेल, वी आर अ फ्यू मोमेंट्स अवे फ्रॉम द टॉस नाउ, एंड बिफोर वी let you go to the Qazafi Stadium, I want to pick Ahmed's brains on who he thinks is going to win today. So Ahmed, prediction time, कौन जीतेगा? I know it's a tough one, but you have to pick a team. टफ है। डेविड वार्नर, साइफर्ट, खुशदिल शाह एक साइड के अंदर, जेम्स वेन्स एक साइड के अंदर, हसन अली, मीर हमजा इज बॉलिंग फिनोमिनली वेल। जब से वो कराची की स्क्वाड के अंदर आए हैं, ही इज एडिंग वैल्यू। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, डोमेस्टिक में मेहनत करते हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे प्लेयर जिन्होंने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया होता है और वो आके उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो करती हैं। ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर देम। और दूसरी तरफ देखें, शाहीन है, उस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फिर हारिस रऊफ कैन बी अ मैच विनर अगर उनका दिल करे तो। फिर दूसरी तरफ आप फ़खर जमान है, फिर जो नईम लड़का वही फॉर्म में है, फिर बिलिंग्स, मिचेल और सिकंदर। तो ये बड़ा टफ है। मुझे लगता है, मुझे करंट फॉर्म एंड सिचुएशन देखते हुए, फिर क्राउड की सपोर्ट भी देखते हुए, इट्स लाइक
40 Lahore. Lahore. So 60-40 Lahore is the verdict from not a former Pakistan cricketer, but a non-active cricketer. So again, before we move to the toss, so it's what Amos is saying कि आज लाहौर के भंगड़े देखने को मिलेंगे, ना कि कराची वालों की जो उनकी एक रिवायती तफरी होती है, जिस तरह से वो हम कल्चरल वॉर्स देखते हैं इन दोनों शहरों के दरमियान। नहीं, अभी देखिए बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ी सी वॉर भी जागनी चाहिए, टूर्नामेंट के लिए अच्छी होती है। अभी तक टूर्नामेंट का वो हाइप पकड़ नहीं सका है उस तरह की। तो जब आप देखते हैं कि जब ये लाहौर कराची की हाइप होती थी, जिस तरह आमिर वर्सेस बाबर, ये सारा बड़ा मज़ा आता था। तो अभी इम्पोर्टेंट मैच होगा, कराची को भी ये पता है, ये अंदर की क्या जंग होनी है, फैंस के लिए एक एंटरटेनमेंट होती है। मुझे लगता है एक बड़ा जबरदस्त मैच आएगा, लाहौर ही ऊपर रहेंगे। Ahmed, I've been told that the both captains are ready for the toss, so we'll go to the Qazafi Stadium and we'll be back. Ahmed and I will be here in the mid innings, so don't go anywhere. We'll see you in the innings break. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान,